Hello and welcome friends, this is Pankaj Kapadia and in this particular video we are going to learn about the combined leakage and overload protection of transformer. So in the previous session and in the last lecture we have discussed about the core balance leakage protection. So वहाँ पे एक disadvantage था. क्या disadvantage था कि if the fault occurs between phases of the relay, phases of the transformer, relay will not operate like this. If I consider the previous session that we have discussed this, so if fault occurs between these two phases or these two phases or between these two phases, okay, your relay will not operate. अगर इन दोनों फेज के बीच में अगर आपका फॉल्ट क्रिएट हो रहा है तो आपका रिले जो है ये रिले ऑपरेट नहीं होगा, ये पर्टिकुलर रिले. फाइन. सो इसका जो ये डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज यहां पे हम दूर करेंगे और इसको ओवरकम करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कंबाइंड लीकेज एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन. Fine. So the core balance protection described that I have described in earlier session. So from the disadvantage that if the fault occurs between phases and relay does not operate. Fine. So this shortcoming is overcome by employing three separate CTs. Fine. So in this system of protection, two overload relays and one earth leakage relay are connected, and the overload relays used are high current setting ones and are arranged to operate against face-to-face faults, while the earth fault relay has low current setting and operates under earth and leakage fault currents. Okay, let me explain you more that in core balance protection we have one drawback that it cannot provide protection against overload. Fine. So if a fault or leakage occurs between phases, the core balance relay will not operate. It usual practice to provide combined leakage and overload protection for transformer actually. So the earth relay has low current setting and operates under earth or leakage fault only. So the overload relays have high current setting and are arranged to operate against faults also, face-to-face faults also. Fine. So the earth relay has low current setting and operates under earth and leakage faults only, and the overload relays have high current settings and are arranged to operate against fault between phases. Fine. So let me more explain you from this particular diagram. So this is combined leakage and overload protection diagram. As you can see here, this is the secondary, this is the power transformer actually. ये power transformer है अपना, ये secondary और ये primary मान लीजिए. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है, तो हमारा जो सिटी होगा वो स्टार कनेक्टेड होगा. ठीक है. फाइन. सो यहाँ पे मैंने सिटी स्टार कनेक्टेड लिया. ये सिटी 1, सिटी 2 एंड सिटी 3, ये तीनों की तीनों फेज में हमने सिटीज प्रोवाइड किए हैं. ये आपका सर्किट ब्रेकर होगा, ये सर्किट ब्रेकर होगा, तो फॉल्टी कंडीशन में ये ट्रिप हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट जो है उसका क्लोज कर देगा. पहले जो है वो इस पोजीशन में रहेगा, ये पोजीशन में रहेगा, बाद में जो है वो प्लंजर खींच लेगा तो सर्किट जो है आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी. फाइन. सो यहाँ पे ये तीनों जो है वो ओवरलोड रिले है, ये तीनों ओवरलोड रिले और ये जो है अर्थ फॉल्ट रिले. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 ओवरलोड रिले हमने यूज किया है और ये एक अर्थ फॉल्ट रिले यूज किया है, और ये जो है वो तीनों के तीनों स्विचेस है. क्या है? स्विचेस है. तो जो भी यहाँ पे रिले का ऑपरेटिंग अगर कोई वैल्यू आई तो ये स्विच जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और ये स्विच की बदौलत, ठीक है, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी अगर एक हो जाए तो ये ट्रिप पूरा का पूरा ये जो है वो ट्रिप हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर भी अपना कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन कर देंगे. ठीक है. सो दिस आर दी ओवरकम रिलेज. तो अब क्या होगा इसमें, इस केस में, कि जब भी कोई फेस टू फेस फॉल्ट आएगा, मान लीजिए कि यहां पे मान लीजिए कोई फॉल्ट नहीं है, सो अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन रिले आपकी जो है ऑपरेट नहीं कर पाएगी. ठीक है. क्योंकि यहां पे अगर कोई आई करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, या फिर मान लीजिए IR करंट है, ये IY करंट है, IB करंट है, तो इसका जो भी वेक्टर सम या फेजर सम होगा 0 होगा. सो ये 0 होगा तो उस हिसाब से ये सीटी का रेशियोज भी जो वो हमने सेट किया होगा. सो
सीटी के रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये प्राइमरी में कोई चेंज नहीं है तो सेकेंडरी में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइमरी में कोई चेंज नहीं है सेकेंडरी में चेंज नहीं होगा। सो इस हिसाब से वेक्टर सम आपका 0 होगा, तो उस हिसाब से यहां पे कोई भी करंट जो है आपका फ्लो नहीं होगा, तो उस हिसाब से आपकी कोई भी रिले आपकी ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे कोई फेस टू फेस फॉल्ट हुआ है, मान लीजिए आर वाई फेज में हो सकता है, वाई बी में हो सकता है, बी आर में हो सकता है, आर वाई बी तीनों की तीनों फेज में भी हो सकता है। सो उस केस में क्या होगा, 1 और 2 ऑफ द ऑपरेटिंग रिले विल ऑपरेट। फाइन, मान लीजिए यहां पे कोई आर वाई फेज में जो है आपका फॉल्ट हुआ है। सो ये फॉल्ट हुआ है यहां पे बिटवीन दिस टू फेजेस, ये फेज हेल्दी है लेकिन इस फेज में जो है वो आपका फॉल्ट हो चुका है, तो ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये जो करंट इनकमिंग करंट है वो इनकमिंग करंट जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन सीधा क्या कर जाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ से होगी, तो डायरेक्शन भी चेंज हो गई और ये करंट जो है वो ट्रिमेंडसली हाई हो जाएगा। तो उस हिसाब से सीटी के अंदर भी ज्यादा करंट जाएगा, इस हिसाब से यहां पे भी सीटी के अंदर ज्यादा करंट जाएगा, तो सीटी की सेकेंडरी के अंदर ज्यादा करंट पास होने लगता है। मान लीजिए यहां पे अगर कोई सीटी हमने सेट की है 500 जेम 5 की, मान लीजिए 500 जेम 5 की, ठीक है। सो यहां पे भी जो ये प्राइमरी का करंट है, मान लीजिए प्राइमरी करंट है और ये सेकेंडरी करंट है, तो जो सेकेंडरी करंट है वो ज्यादा हो चुका है। मान लीजिए ये नॉर्मल करंट है, फाइन, ये नॉर्मल करंट है। अगर मान लीजिए 550 करंट जो है वो एम्पियर का करंट, मान लीजिए इतना तो नहीं होगा, मान लीजिए 700 एम्पियर, 700 एम्पियर अगर करंट यहां से फ्लो हो रहा है, फॉल्टी कंडीशन में फॉल्ट हुआ है, ठीक है, 700 एम्पियर, तो उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर सिटी में 7 एम्पियर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो ये सिटी की सेकेंडरी में 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने कितनी रेटेड रखी थी 5 एम्पियर, लेकिन अभी कितना करंट पास हो रहा है 7 एम्पियर हो रहा है। तो उस हिसाब से ये 7 एम्पियर हो रहा है, तो ये सिटी की कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। और देखिए कौन सा यहां पे रिले कॉइल ऑपरेट होगा, एक तो ये होगा और ये दूसरा ये होगा। सो ओवरलोड रिले जो है वो आपका ये दोनों का कोई भी एक ट्रिप करना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक, तो ये ऑपरेट कर जाएगा और ये स्विच को ऑन कर देगा और ये स्विच को भी ऑन कर देगा। तो इस हिसाब से ट्रिपिंग सिग्नल जाएगा। सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। फाइन, कोई भी दो फेज में इस तरह से हो सकता है। सो इट शोज दैट द अरेंजमेंट, okay, so in this particular system of protection, the overload relays and one leakage or earth relay are connected as shown in this figure, and the two overload relays are sufficient to protect against face to face faults. Okay, so the trip contacts of the overload relays and the earth fault relays are connected in parallel. Therefore, with the energizing of either overload relay or earth relay, the circuit breaker will tripped. Fine. So in the case of earth leakage fault, earth relay will operate. क्यों अर्थ रिले ऑपरेट होगा, क्योंकि अर्थ लीकेज फॉल्ट जो है वो काफी स्मॉल अमाउंट पे होता है। क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये ज्यादा किस केस में होता है, ये फेस टू फेस फॉल्ट में होता है, ठीक है। सो अर्थ लीकेज में कुछ इतना ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो नहीं होता है, तो ये रिले आपकी जो है ये कॉइल ऑपरेट, ये ओवर करंट रिले कॉइल है वो आपकी ऑपरेट नहीं करेगी उस पर्टिकुलर फॉल्ट पे, ठीक है। कौन से फॉल्ट पे, अर्थ लीकेज फॉल्ट पे, लेकिन ये रिले ऑपरेट कर जाएगी। तो ये रिले ऑपरेट कर जाएगी तो ये स्विच यहां पे कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली ये सर्किट ब्रेकर आपका क्लोज कर देगी, ठीक है, और ट्रिप कर देगी। और इन द केस ऑफ ओवर करंट रिले, अगर यहां पे करंट आपका जो है वो काफी ज्यादा है, तो ये दोनों रिले सफिशिएंट है वो ओवर करंट को सेंस करने के लिए और इस सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंबाइंड लीकेज प्रोटेक्शन एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। फाइन, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।